Hello everyone, today's video is all about again a new set is there. You have to see the difficulty level of the questions and understand what the question is asking to you. In that way, try to answer your answers. So this is the very first section. As usual, I'm not gonna read this, but I'm just showing it to you. अगर आप interested हो तो you can see it by pausing the video and even solve the questions. So this is section B. The very first question here is prepare a poster advising people not to take alcoholic drinks, illustrating the danger of consuming alcohol. Event details. You are Rajan Rajni. And और है यहाँ पे write an advertisement to be published in a local newspaper, Daily News, for the lost and found column, reporting the loss of your briefcase carrying important documents while traveling by bus from Nehru Place to Rohini. You are Ramesh or Priti, C5/8, Rohini Sector 7, New Delhi. To prescribe word limit is also given. You are going to write in between the prescribed word limits. Okay. So this is you are Arun Basheen of C5 Patel Nagar, New Delhi. You have seen an advertisement in a newspaper for the post of accountant in Fine Prints Private Limited, Sector 18 Noida. Write an application including your biodata for the above post. तो ये जो है ये जॉब एप्लीकेशन जो आपने पढ़ी है ये उसके फॉर्मेट में बनाना है इसको. You are Arun Aruna, a resident of Ankur, Bihar, New Delhi. There are no street lights on the main road leading to this colony. The road gets so dark at night that the possibility of any mishap cannot be ruled out. Write a letter to the editor, Daily News, New Delhi, drawing attention of the concerned authorities to this problem. So this is 120 to 150 words. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट अ डिबेट. डिबेट में आपको ये ज़रूर मेंशन करना होता है कि ईदर यू आर इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन. ऑल इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. सो these questions are already written and you can see from here. मैं सभी को पढ़ने वाली नहीं हूँ. आते हैं लिटरेचर सेक्शन के ऊपर. और मुझे लगता है जो पहले पेपर्स मैंने अपडेट किए हैं अपलोड किए हैं उनमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है. That I saw my mother beside me, doors open, mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put the thought away. तो ये क्वेश्चंस भी आप पढ़ो. और इसके साथ स्टैंजा जो है इस बार स्टैंजा का और स्टैंजा के साथ है बट आपका पैटर्न डिफरेंट है. तो यहाँ पे आंट जेनिफर्स टाइगर्स से ये स्टैंजा लिया गया है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर भूल find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Why are Aunt Jennifer's fingers fluttering through her bowl? Why is Aunt Jennifer doing that she finds very hard to do? Why does the wedding band seems too heavy? What impression do you form of Aunt Jennifer from the extract? Now we have short answer type question. Mention any two long-term consequences of the drowning incident for Douglas. पहली तो वो जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे जाता है और महज 4 साल की उम्र में एक हैवी वेव आके उसको नॉक डाउन करती है. दूसरा वो जो YMCA पूल में उसको एक बुली जो है वो गिरा देता है. तो these two incidents have great or long-term consequences on Douglas. तो ये आप लिख सकते हो. What is the poem? पोएम एंड एलिमेंट्री क्लासरूम ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं. डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम. तो साहेब जो है उसका मतलब है इंग्लिश में लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बट द आयरनी इज़ ही वॉज नॉट एबल टू गेट द मीनिंग ऑफ हिज नेम. उसको पता ही नहीं था कि मेरा नाम जो है इतना महान नाम है. हाउ डज़ द गवर्नर कन्विंस द सेक्रेटरी दैट इवान डिज़र्व्स. तो ये सिलेबस में नहीं है.
Why did the general not send Dr. Sadao to the war front where he was most needed? Because उसको अपनी चिंता थी कि अगर वॉर फ्रंट पे वो चला गया डॉक्टर सडाओ तो उसकी केयर जो है वो कौन करेगा, और उसी को डॉक्टर सडाओ को ही जनरल जो है वो मोस्ट ट्रस्टवर्दी मानता है, इसलिए वो उसको वॉर फ्रंट पे नहीं भेजता। अगला क्वेश्चन जो है ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट वन। हाउ डिड महात्मा गांधी हेल्प द चंपारण पेजेंट्स? किस तरह से वो मदद करते हैं। हाउ आर जेंसी एंड सोफ़ी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? जेंसी जो है वो रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। सोफ़ी जो है वो डे ड्रीमर है, इमेजिनेशंस में बिलीव करती है, फैंटेसी में रहती है। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस की जो फीलिंग है वो एम हैमल और स्कूल के प्रति कैसे चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर सडाओ इज़ अ मैन एज अ सर्जन आफ्टर रीडिंग द एनिमी? आपके इंप्रेशन जो हैं वो किस तरह से बन जाते हैं डॉक्टर सडाओ को अगर एज ए मैन पढ़ें, एज ए सर्जन पढ़ें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो मतलब उनका कैरेक्टर स्केच जो है आपने लिखना है। हाउ डिड मिस्टर लैम चेंज डैरीज लाइफ? मिस्टर लैम जो है वो डैरी की लाइफ को कैसे चेंज करते हैं? तो पॉजिटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव थिंग्स को इनकलकेट करके, उसको एग्जाम्पलीफाई करके, उसके सामने रख के, अपनी लाइफ की पूरी कहानी बता के वो डैरी की लाइफ को चेंज कर देते हैं। हाउ डिड जिक्लासा फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन? तो जिक्लासा जो है वो किस तरीके से ऑपरेशन का सामना करती है या उसके लिए लड़ाई लड़ती है। जिक्लासा का कैरेक्टर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये नॉवल से है, नॉवल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पहले हुआ करते थे द इनविजिबल मैन, जब ग्रिफिन का अकाउंट और कर्नल एडी का, तो ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय। मुझे होप है कि आप पुराने पेपर्स को भी जो मैंने पहले अपलोड की है वीडियोस वो भी पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।